डिपेंडेंट परटर्बेशन हमने खत्म की थी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो अब टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी देखनी है कि टाइम का फैक्टर जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। So far we have discussed the time independent Hamiltonian. Now we would like to discuss the problem for which the Hamiltonian contains a part which has a time dependence. This will lead to a kind of quantum dynamics which deals with the probability that a system undergoes a transition from one state to another. तो वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने किसी एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाना है तो दरमियान में उसकी मोशन पे डायनामिक्स पे टाइम का फैक्टर कहाँ और कैसे इफेक्ट होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद हेलो, अभी कम आ रही है? हेलो, माइक्रोफोन तो करीब ही है यार मेरे, आप बताएं। ठीक आ रही है सर। Okay, so let us start with the free particle Schrodinger wave equation. Iota h cut curl over curl t psi naught is equal to h naught and psi naught. तो ये है आप लोगों की free particle की Schrodinger wave equation, where psi naught is the state of a free particle and h naught is the free particle Hamiltonian. बट अब आप कहते हैं कि आपका पार्टिकल इन अ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल भी किस किस्म का है ये देखें। ये एक न्यू टाइप का पोटेंशियल है जो पहले हमने स्टडी नहीं किया कभी। तो अब हम इसको देखते हैं कि in the presence of an interacting potential Vxt, the Hamiltonian is interacting। इसलिए इसको कह रहे हैं जब पार्टिकल इसके अंदर मूव करेगा तो टाइम का फैक्टर उसकी डायनामिक्स पे इफेक्ट करेगा। h is equal to h naught plus Vxt। और इंटरेक्टिंग कहने का मकसद एक और भी होगा, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ परटर्बेशन भी कहलाता है। आगे चल के मैंने को लिखूंगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ परटर्बेशन। तो ये परटर्ब हैमिल्टोनियन है, ये h naught अनपरटर्ब Vxt, where all time dependence enter through the potential V of t, where V of t characterizes the interaction of the system with external source of perturbation। तो ये external source of perturbation भी है कि आपके हैमिल्टोनियन को परटर्ब कर रहा है। Okay, in this case the Schrodinger wave equation will become like this: iota h cut curl over curl t psi of t is equal to h naught plus Vxt psi of t। अब wave function भी time dependent हो गया है, आपका potential भी time dependent। The main task of time-dependent perturbation theory is that how does V of t affect the system? कि किस तरह उसकी dynamics को ये affect करेगा, mathematically हमने देखना है। Okay, maybe the system is in initial and unperturbed eigenstate psi I of unperturbed Hamiltonian h naught. What is the probability that the system will found at a later time in another unperturbed eigenstate psi f? अब आप लोगों के पास दो unperturbed eigenstates हैं psi I and psi f। तो इनके दरमियान एक टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है और उसके अंदर पार्टिकल ने मूव करना है तो कैसे इफेक्ट करेगा। However, the state psi of t can be expanded as in the interaction term. Psi of t is equal to summation n a n of t phi n e raised power minus iota over h cut e n t, and this a n is called the interaction coefficient जो कि हमने कैलकुलेट करना है। This is called interaction representation. With this condition, when h naught unperturbed Hamiltonian apply on phi n, one will get E n phi n. And also another condition, phi n canonical delta, and this is the normalization condition। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अप्लाई करनी है। Okay, the time dependence of the coefficient a n is a consequence of interaction v x and t। जो मैंने कहा कि ये आप लोगों के पास जो पोटेंशियल है टाइम डिपेंडेंट है, तो ये ए एन इंटरेक्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट, हेलो, यस सर जी, शेयरिंग नजर आ रही है या मैंने डेल रिमूव कर दिया है? नजर आ रहे हैं नोट्स? ओके ओके, नाउ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई ऑफ टी। तो ये साई ऑफ टी की वैल्यू पुट की है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद ये है। अब देखिए इस इक्वेशन में दो चीजें टाइम डिपेंडेंट है, ए एन ऑफ टी और ये फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जब आपने करना है तो हमने इस सब को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप देखोगे मैं फाइनल इक्वेशन बता रहा हूँ वो ये बनेगी आप लोगों की। दिस द फाइनल, ये मैथमेटिक्स है, कुछ कर लीजिएगा, आप इतने आप लोग हो गए हो मैथमेटिक्स कर लोगे। तो ये इक्वेशन बनती है आखिरी, iota h cut summation n n a n dot, ये डेरिवेटिव है जिसको आप डॉट में कह रहा हूँ, ये डेरिवेटिव है आप लोगों का। ओके, एंड a n of dot a n dot of t phi n e raised power minus iota e n t over h cut is equal to summation n v of t a n of t psi n e raised power minus iota e n t over h cut. This is the final equation after taking some step. Okay, now taking an inner product with phi f। अब phi f के साथ मैं inner product लेता हूँ, देखें जरा, ये है
फाई एफ फाई एन के साथ पहला इनर प्रोडक्ट, ये दूसरा इनर प्रोडक्ट राइट साइड पे, ये मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा ये वाला, और ये क्रोनिकल डेल्टा बन जाएगा. ओके, देन iota h cut summation n a n dot of t delta fn, ये बन गया डेल्टा fn, and e raised power minus iota e n t over h cut which is equal to summation n a n of t v f n. तो ये बन गया आप लोगों का मैट्रिक्स एलिमेंट e raised power minus iota e n t over h cut. ओके, वेयर आगे मैंने लिख भी दिया है v f n of t is equal to phi f v of t phi n is the matrix element of v of t. तो ये v of t का मैट्रिक्स एलिमेंट. फॉर f इज इक्वल टू n, अब मैं f को n पुट करता हूं और देखता हूं क्या हो जाता है. तो वो जो क्रोनिकल डेल्टा था ये वाला, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पे भी f आ जाएगा. तो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दैट iota h cut summation n a f dot of t e raised power minus iota e f t over h cut is equal to summation n a n of t v f n t e raised power minus iota e n h cut over t. ओके, देन AF डॉट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, विच इज इक्वल टू माइनस iota over h cut summation n a n of t v f n of t e raised power iota into e f minus e n into t divided by h cut, इक्वेशन 1. ये सिचुएशन है जो पहले ऊपर मैंने बयान की है कि आप लोगों के पास एक इनिशियल स्टेट है फाई आई, फिर एक फाइनल स्टेट है फाई एफ, और एक पोटेंशियल है इसके दरमियान जो टाइम डिपेंडेंट है, और पहला टाइम t1 माइनस t by 2, दूसरा टाइम t2 t by 2. तो पार्टिकल ने यहाँ पे मूव करना है टाइम डिपेंडेंटली, और ये t इज इक्वल टू 0 है. ओके, वो कहते हैं कि बिफोर द एक्शन ऑफ v, अगर आप कहते हो v नहीं है, द पार्टिकल इज एन एगेन स्टेट फाई आई, इनिशियल स्टेट में होगा ऑफ h नॉट at t1 is equal to minus t by 2. we take interaction coefficient like this, कि interaction coefficient in principle किसी तरह 1 के बराबर होगा. कैसे 1 के बराबर होगा देखें, a n of minus t by 2 is equal to delta ni, और n is equal to i के बराबर, तो ये 1. तो वहां पे इंटरेक्शन है ही नहीं जब आप फाई आई पे बैठे हो. तो ये हमारे पास आ जाएगा. Hence equation 1 can be expressed as AF dot is equal to minus जी डेफिनेटली इंटरेक्शन कोफिशिएंट को मैं बता रहा हूँ फाई आई पे. नहीं, आप कहते हो कि कांस्टेंट पोटेंशियल है, टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कांस्टेंट पोटेंशियल. आगे मैं बताऊंगा कि ये कांस्टेंट पोटेंशियल को कैसे हम डिस्कस करते हैं. पोटेंशियल है बट टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप फाई आई में, टाइम डिपेंडेंट. ओके, AF dot is equal to, then equation 1 can be expressed as AF dot is equal to minus iota over h cut VF I of t. अब n i के बराबर हो गया e raised power iota EF minus EI into t over h cut, इक्वेशन 2. अब आप लोगों ने इंटरेक्शन कोफिशिएंट का डेरिवेटिव लिया है, तो बेसिकली यही इंटरेक्शन कोफिशिएंट ट्रांजिशन के बारे में बताएगा आप लोगों को. देखिए कैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्ड, हेलो जी, अब ठीक है. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए ये तरीकाकार है. द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी corresponding to a transition from an initial unperturbed state phi I to an other unperturbed final state phi f is obtained by integrating of equation 2. तो वो कहते हैं इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दो, जो कोफिशिएंट है बेसिक सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाए फाइनल स्टेट के अंदर, तो आप लोगों को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कुछ निकल आएगी. तो वो कुछ इस तरह से है AF of t, यहाँ पे डेरिवेटिव था, इंटीग्रेशन ली तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, इज इक्वल टू माइनस iota over h cut t1 to t2 VFI of t e raised power iota into EF minus EI t over h cut dt. t1 की वैल्यू ये है, t2 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दो तो AF of t, तो बेसिकली जिसको आप TFI भी कहते हो, AF को TFI भी कहते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, इज इक्वल टू माइनस iota over h cut minus t by 2 to t by 2 VFI of t. आगे वही टर्म जो ऊपर वाली है आप लोगों के पास. ओके, देन TFI can also be written as minus iota over h cut minus t by 2 to t by 2 dt. ये जो VFI है इसको अगेन मैंने इंटर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, और e raised power iota into EF minus EI, यहाँ पे आपके पास t होगा डिवाइडेड बाय h cut, जो ऊपर वाली टर्म आपके पास है वो एज इट इज आ जाएगी. सॉरी, यहाँ पे t और यहाँ पे h cut आएगा, तो ये आ जाएगा. ओके, दिस इज द इक्वेशन 3. अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इफ यू रिमेंबर, कोई वेव फंक्शन होता था तो उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे आप लोग? साई स्टार साई, ऐसे ही था ना, या साई मॉड स्क्वायर. द क्वांटिटी TFI मॉड स्क्वायर इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट फाई आई टू अ फाइनल स्टेट फाई एफ. तो अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका स्टेरिक लेना पड़ेगा, और तब आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, लेट्स सी कैसे. कांस्टेंट परटर्बेशन का क्या मतलब है? We consider the case when the perturbation v of t is equal to 0 for this region t less than minus t by 2 and t greater than t by 2 and constant over the period this one.
-t/2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू t/2। तो अब आप कह रहे हो कि इस रीजन के अंदर ये देखिए ये कांस्टेंट मैंने बना दिया है एक रेक्टेंगुलर, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पे इस रीजन के अंदर। अब टाइम डिपेंडेंट नहीं है, पोटेंशियल जरूर है बट कांस्टेंट पोटेंशियल है। लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर गिवन इंटरवल ऑफ परटर्बेशन एंड v बिगेन सफिशिएंटली वीक, तो वो कहता है कि जब आप कहते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल है तो पोटेंशियल टाइम का डिपेंडेंट नहीं रहता, तो उसको इक्वेशन 3 में से इंटीग्रल से बाहर ले लें। देन TFI इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर h कट VFI माइनस t/2 टू t/2 dt, और आखिर में ये चीज बचेगी और ये WFI जो आया है ये इसके बराबर है। WFI इज इक्वल टू EFI माइनस E ओवर h कट, और h कट को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन टाइम डिपेंडेंट। ओके, देन इन दिस केस अगर इंटीग्रेट करो इस रकम को इंटीग्रेट करो तो आंसर आएगा TFI इज इक्वल टू माइनस VFI डिवाइडेड बाय h कट ओमेगा FI e raised power iota omega fi t minus t/2 to t/2 by integrating by putting the limit put कर दो और ये आंसर आएगा by applying these two formulas e raised power iota x और e raised power minus iota x आप अप्लाई करो और उनको सम अप करो तो ये आंसर आता है आप लोगों के पास। ओके, देन इसका स्केयर ले लो कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी TFI mod स्केयर इज इक्वल टू 4 ओवर h कट स्केयर VFI mod स्केयर sin स्केयर ओमेगा fi t/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा fi स्केयर। ओके, इसको मजीद सिंपलीफाई कर दो, ये पूरी की पूरी रकम जो है मैंने एक फंक्शन के तौर पे कर दिया है और ये फंक्शन है 4 ओवर h कट स्केयर VFI mod स्केयर f of xi and t, and f of xi and t is equal to sin स्केयर xi t over xi स्केयर xi is equal to h कट ओमेगा fi, तो ये बराबर है। तो इसको सीरीज को ओपन करो तो ये कहता है कुछ इस तरह से sin स्केयर की सीरीज आती है 1 ओवर ओमेगा स्केयर xi t over 2, ये MMP में पढ़ा होगा मैंने, xi t over 2 क्यूब 1 over 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन होल स्केयर, ये भी है। तो ये एक साइनोसाइडल स्केल है। तो अब हमने देखना है कि f ऑफ xi, क्योंकि साइन का फंक्शन है, f ऑफ xi and t इज मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब t स्क्वायर ओवर 4 आएगा व्हेन xi अप्रोचेस टू 0। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज एन ऑसिलेटिंग साइनोसाइडल फंक्शन विद अ पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा fi। तो ये एक साइनोसाइडल फंक्शन होगा जो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये जरा देखें। अगर आप कहते हो कि ये फंक्शन जो साइन का फंक्शन था टाइम डिपेंडेंट था, आपके पास मैक्सिमम हो तो आपको xi की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी और xi बराबर ऊपर मैंने दे दिया है क्या है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब मैक्सिमम होगा। As shown in fig above, the transition probability is maximum only when xi is equal to omega fi is equal to 0. Omega fi basically is the energy difference between two state. तो अगर दोनों स्टेट की एनर्जी डिफरेंस 0 है, दोनों स्टेट की सेम एनर्जी है, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। एंड डिके रैपिडली एज मूव अवे फ्रॉम 0, और वो कहता है कि अगर 0 से दूर जाओ तो आपके रैपिडली डिके होती है दोनों साइड पे, तो मैक्सिमम सिर्फ यहाँ पे होगी जहाँ पे xi इज इक्वल टू 0 होगा। xi 0 का मतलब है कि ओमेगा fi 0, ओमेगा fi 0 का मतलब है कि एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट। ओके, होना चाहिए, ये कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए ऐसा होना जरूरी है, ये एक आइडियल केस है कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए। मैं ये नहीं, देखें आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, हेलो, एक एनर्जी स्टेट है उसके अंदर पार्टिकल है उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप दूसरी स्टेट जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि डीजेनरेट है, उसके अंदर भी वो पार्टिकल जा सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि उसकी भी 4 है, उसकी भी 4 है, तो वो पार्टिकल दोनों स्टेट के अंदर रह सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ। देखें आपके पास दो दीवारें हैं, ठीक है, एक दीवार की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी दीवार की भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पहली दीवार पे बैठा है जिसकी एनर्जी EI है इनिशियल, ठीक है। अब आप कहते हो पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, उस पे पोटेंशियल का मतलब इफेक्ट नहीं है, तो उस पोटेंशियल में मूव करने के बाद पार्टिकल जब दूसरी साइड पे पहुंचता है तो उस स्टेट की भी एनर्जी कितनी है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर EI इज इक्वल टू EF होगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल दूसरी साइड पे जा सके, ये मैंने लिखा हुआ है। इसलिए द हाइट एंड विड्थ ऑफ द मेन पीक, अच्छा अब वो उसकी हाइट एंड विड्थ, वो जो मेन पीक है उसकी, वो कहते हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द हाइट एंड विड्थ ऑफ द मेन पीक सेंटर्ड अराउंड xi इज इक्वल टू 0 आर प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड 1 ओवर t रेस्पेक्टिवली। हेंस द ट्रांजिशन, हेलो हेलो जी आप ठीक है, okay, hence the transition probability is proportional to t and grows linearly with time.
द सेंट्रल पीक बिकम्स नैरो एंड हायर एज टाइम इंक्रीजेज। तो वो कहता है जो टाइम इंक्रीज होता जाएगा वो पीक शार्प बनती जाएगी। शार्प पीक का मतलब होता है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने की। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉपर्टी ऑफ ए डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन भी यही बताता है कि अगर आपकी पीक बहुत ज्यादा शार्प है तो पार्टिकल वहीं पे पाया जाएगा, बाकी किसी रीजन के अंदर नहीं होगा। तो वो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है ये वाला। अगर टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी जाई साइन स्क्वायर जाई टी बाय 2 और जाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई टी ओवर 2 आंसर आता है, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। टू पाई टी ओवर 2 डेल्टा ऑफ जाई फॉर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वो कहता है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम हो जाएगा, शार्प पीक हो जाएगी व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एट जाई इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन है। द मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जाई एट टाई इज इक्वल टू 0 बिकम्स वेरी शार्प सो दैट इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ जाई ऑफ टी इज इक्वल टू पाई टी ओवर 2 डेल्टा ऑफ जाई व्हेन जाई अप्रोचेस टू 0। ओके तो इससे दो आप लोगों के पास रूल्स आते हैं फर्मी गोल्डन के। तो उसने बताया ट्रांजिशन इनटू अ कंटिन्यूम ऑफ फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट के अंदर ट्रांजिशन जो बनती है अकॉर्डिंग टू गोल्डन फर्मी रूल के वो ये है। नाउ वी कैलकुलेट द टोटल ट्रांजिशन रेट associated with the transition from an initial state into a continuum of final state. For this energy to be conserved during the transition, so delta E should be equal to 0. Energy of initial and final state should be equal. ये condition है energy conservation के लिए. But the uncertainty principle, time energy uncertainty then that delta E delta T greater than equal to h cut by 2 implies that and infinite time separates the initial and final state. Infinite time होना चाहिए, t approaches to infinity होना चाहिए. So the physically important quantity is not transition probability वो कहता है in this case, but the transition probability per unit time, कि उसको टाइम पे छोटा छोटा डिवाइड कर दो तब जाके आपकी सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो कुछ इस तरह से है WFI is equal to TFI mod square over T पे डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व करो तो फाइनल आंसर ये आता है 2 पाई ओवर h कट स्क्वायर VFI mod square डेल्टा ऑफ जाई। जाई की वैल्यू पुट करो तो EFI माइनस EI ओवर h EF माइनस EI। देन आपके पास आएगा ओमेगा WFI is equal to 2 पाई ओवर h कट स्क्वायर। ये इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है मैट्रिक्स एलिमेंट को इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। देन डेल्टा ऑफ EF माइनस EI। दिस इज कॉल्ड फर्मी गोल्डन रूल 1। अच्छा वो कहते हैं कि फर्मी गोल्डन रूल, फर्मी साइंटिस्ट था, तो फर्मी गोल्डन रूल 2 भी उसने बनाया कि अगर आप जाई को रो की फॉर्म में ले आओ नंबर ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में। लेट्स सी नाउ कंसीडर द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट की डेंसिटी क्या है? रो ऑफ EF वेयर द नंबर ऑफ NF ऑफ फाइनल स्टेट लाइंग इन द एनर्जी रेंज EF टू EF प्लस DEF। इसमें कैसे निकालोगे? इज NF इज इक्वल टू रो ऑफ EF DEF। तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी यूनिट रेंज। देन इन दिस केस the transition probability per unit time is then will become like this। तो सिर्फ ये एक डिफरेंस आ जाएगा, रो EF ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको सॉल्व करो तो आंसर आता है WFI is equal to 2 पाई ओवर h कट। फिर इसको ये आपके पास था मैट्रिक्स एलिमेंट, इसको लिख दिया। फिर ये जो टोटल इंटीग्रल है, टोटल इंटीग्रल को मैंने ये लिख दिया रो ऑफ EI। दिस इज कॉल्ड फर्मी गोल्डन रूल 2। अब इनका मतलब क्या है? इट इंप्लाइज दैट इन द केस ऑफ कांस्टेंट परटर्बेशन, जब आप कहते हो कांस्टेंट परटर्बेशन है द टोटल ट्रांजिशन रेट बिकम कांस्टेंट, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम का कोई भी फैक्टर आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन हो जाएगी अगर आप टी का या कांस्टेंट परटर्बेशन का नाम देते हो तो। दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो नेक्स्ट आप लोगों के हैं दो टॉपिक हैं, एक है वेरिएशन मेथड और